Hello everyone and welcome to Vivolve series of birth numbers 1 to 9. In this series we are going to cover the qualities, traits and suggestions as per your birth numbers. I will try my best to guide you as much as I can as per these numbers, and I would request you to take this guidance in two ways. One, accept the traits that you feel cannot be changed so that it helps you to understand yourself and others. And second, where you feel some changes can be made, where the traits are actually troubling you in your life or they are a problem for others who are living with you, try to change them. So please take that guidance and make the maximum out of this. So before we begin, I would request you to please go back and watch episode 1 where I explained the difference between the birth numbers and the destiny numbers and how to calculate them. It will be easier for you to understand what I'm talking about here. So I would like to give you a little basic understanding of numerology and how these traits are calculated. So every number that is from 1 to 9, we have 9 numbers. Every number is given a ruling planet. Okay, so we have 8 planets in our solar system. Now we'll remove Earth from there because we are living on it. So we are left with only 7 planets. So these 7 planets plus the sun and the moon. So these 9 celestial bodies are going to rule numbers 1 to 9, and as per numerology, every celestial body is given one number. Now when you're born on any of these dates, you are supposed to carry the traits of these planets. Okay, so it is automatic that when you're born under the date of birth of sun, that is 1 for example, so you will have traits of sun. So similarly, when you will be born under any of these planets with the other numbers assigned, you will have the traits of these planets. Now basically we all should always try to enhance our positives and try to work on our negatives. Also, apart from this numerology, these numbers, it might happen that you do not find 100% accuracy here. Reason being, there are other lot many numbers which are involved in our date of birth, that is your month and your year and your moon sign, your sun sign. All these things also play a very important role. So it's a permutation combination of a unique chart that you have. So over here I'm only discussing the numerology birth numbers. So these other things also play a very important role. Next and the last most important thing before I start is, you might find that two people with the same birth number might not be same. They will have some basic differences. Now why does that happen? Over here the role of soul awakening comes. Every person, every body, every soul that is going through the earth is going through an evolution. So we can say that you are 5 years old, she is 18 years old, he is 20 years old. That is the age of the body, but the age of the soul is very different from all these things. So it depends at what level is this soul operating. Okay, you can operate from a higher level if your soul is very much evolved and awakened, or you might be operating from a very low level. So what happens is, when you are operating from a very low level plane, your negative traits start overpowering you. It is very difficult for you to work on yourself. So eventually you accept it and your negatives are highlighted. On the other hand, if you are operating from the higher plane, your positive traits are going to be used very well. You will have them enhanced, and you will know it very well how to overcome your negative traits. You will have a good control over them. That is the difference that you will find in two different people with the same birth number. So this will help you understand yourself and others very well. So here I have covered the basic information. So let's reveal number 8 today. Number 8 are the people who are ruled by the planet Saturn. Saturn means Shani. This is one that complicated number which we are going to analyze from different angles. Following what we are following for other numbers, that is the traits of the planet. If you look at Saturn, Saturn has a ring around it. Let's begin with the shape itself. If you look at the Saturn properly, you will see that the half of the planet is above that ring and half is below that ring. Similarly, if you look at number 8, half is above and half is below. It signifies that they follow an extremity in their life. For example, if somebody is highly spiritual, so for these people, let me tell you, there's nothing normal. Everything is on the extreme.
So somebody who's been very very materialistic in his lifetime, half of his life will be completely after money, power, and everything, and the second half of his life will go to the extreme end of spirituality. This is one example. Other few examples can be wherein one on one hand they are being very much controlled, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं. On the other hand, they start exploding. So for half of their life, if they are just trying to do a lot of hard work, waiting for their time to come, which never seems to be coming for them, in the second half they will start exploding. They'll blast everyone. They will be very aggressive in the second life. So it's not for everyone. You might follow it. I'm just giving you some examples. So every number 8 is living their life in two halves. One is like approximately, if you take it approximately of 70 years, so it's 35 years will be one type of lifestyle, and the next 35 years are going to be the another type of lifestyle. So you will see a magnificent change in your life in these two halves of your life, and this is the reason when you look at the shape of the Saturn, this is what it signifies. And the majority of number 8s will follow half life, a lot of hard work, half life to enjoy, or vice versa, depending on what path you're following. Another point that you can notice from the shape and the figure of number 8 is that it is the only number in the entire number series which is a closed number. Other numbers, if you look at them, they are open from one end or the other. But 8 is the only number which is closed entirely. It's completely closed. That means a lot of restrictions. Also, it shows the kind of stubbornness they have and their strong willpower. The strength it shows that how a lion stands so strongly in any ups and downs. And even if you try to make them fall, thinking that now this is the end of them, just imagine converting it into the horizontal direction, you will see that it becomes infinity. So even if you make them fall, they have no fear of falling. They will rise again, and they will go to such extreme of destruction or construction, either ways, as I said, in what path you're following, they will rise again, that is for sure. Because of this closed nature that they have due to this figure of this number, you will not find these people sharing a lot of stuff to anybody else. They will be very limited to within themselves. They will keep on working on their skills. Hard work is a synonym for number 8. They are so used to hard work, and they are so used to waiting that the amount of hard work and the pain which has gone in achieving something, you cannot have an idea. No matter if you've gone through the biggest of the biggest struggles in your lifetime once or twice, if you ask a number 8, they might not even talk about it, but it is their lifestyle. They are so used to it. Normal is boring for them, because since they have there is a time in their life when the struggle begins in a very early childhood. So if you're lucky, it might just begin in your 20s or in your teenage, but when the struggle starts, it just doesn't seem to be stopping. And since then only, these people become very stubborn, very aggressive, with a very strong willpower, because they don't know how to give up. They just don't want to give up. That ego which they carry will not let them give up, and they just don't like asking for help from anyone. Even if they grow old in the old age, they would not want to depend on their children. So sun sign Librans and Capricorns are also ruled by Saturn, so they might also have some traits of these. So let's dive deeper into the traits of number 8 today, and let's see what all suggestions are coming your way. So let's try and understand that why do you guys have so much of struggle in your life? I mean, the definition of struggle is underdefined when it comes to other numbers. For number 8, it has a different meaning altogether. It has been taken to another level altogether. Why does this happen? Basically, you are in the vibration of Shani. You are in the vibration of the planet Saturn. Okay. Now, this particular guru, he is known for justice. Shani would never spare anyone, no matter what designation you carry, what gender you are, or what age you are in. It just does not matter. You are treated equal, and you are evaluated as per your karma. Karma is the most important thing for Shani. So you are operating from that vibration. So if any other number whose guru is something else might get spared, but you won't be. So आप ये समझ सकते हो कि आप दो धारी तलवार पे पूरी ज़िंदगी चल रहे हो, तो इसलिए होता है. लेकिन ये मोस्टली क्या होता है ना, किसी भी साइड की नेगेटिव चीज़ को हम ज़्यादा एम्फसाइज करके सोचते हैं और उसकी पॉजिटिव साइड नहीं देखते.
अगर आपका कर्मा सही है तो आप सोचो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, जहाँ पर बाकी नंबर्स को बहुत टाइम लगेगा उस जगह पे आने में, लेकिन आपका कर्मा इमीडिएटली वो सर्विलेंस सिस्टम के अंदर आएगा. इट्स जस्ट लाइक यू आर स्टैंडिंग with the judge, and the judge does not even need lawyers in between to defend you. The judge is seeing you right there, so you will get the result immediately without any trials. And vice versa, if you're not doing well, if you're doing if your karma is bad, you will be punished immediately. So if we see the psyche of this operation which is happening on this earth, the role number which is given to you, that is to be under the surveillance all the time. And that is why the amount of strength that you carry is not given to any other number. The independence which you carry, that stubborn nature which you have, is not given to somebody else. Anybody can fall and it will take forever for them to rise back again, but you guys are not even scared of falling down. इतना स्ट्रेंथ दे के आपको भेजा गया है ताकि आप कुछ काम करो. आई विल कम ऑन टू दैट कि व्हाई यू पर्टिकुलरली आर गिवन नंबर 8, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. आई विल गो ऑन टू दैट ऑल्सो, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि इतना स्ट्रगल क्यों है. अब अगर आप ये देखो कि अगर आपका कर्मा अच्छा है, यूजुअली क्या होता है दैट वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, सो अननोइंगली वी एंड अप डूइंग रॉन्ग कर्मास. हम लोग कुछ ना कुछ कर्मा क्रिएट कर देते हैं अननोइंगली. वहाँ पे जब हमें पनिशमेंट मिलता है वी बिकम वेरी अपसेट कि ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं था. एंड देर इज़ एन अंडरलाइंग, एक तो ईगो सब में होता है, ठीक है, सब में है, हम सब में हैं. टिल द टाइम वी आर अलाइव एवरीबडी इज ऑपरेटिंग विद ईगो. दैट अवेयरनेस व्हेन इट गोज अवे यू टेंड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कर्मास. तब आप और फंसते हैं. तो बाकी लोग फंसे ना फंसे, आप ज़रूर फंसोगे. ये आपने भी देखा होगा कि आपके वर्क प्लेस में या आपके पर्सनल लाइफ में आप बहुत सारे दूसरे लोगों की गलतियों का बोझ आप उठा के चल रहे हो. पनिशमेंट किसी और को मिलना था, वो आप झेल रहे हो. सैक्रिफाइस आपके नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, आपको करना ही पड़ेगा. खुशियाँ सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, अपॉर्चुनिटी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वो साथ के साथ रिजल्ट देना पड़ेगा. नाउ कम्स द पॉइंट कि वाई मी. आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड इट इन अदर नंबर सीरीज दैट वाई मी. आई थिंक इट वॉज नंबर 4. सो नंबर 8 के लिए क्यों है? क्योंकि हर सोल को व्हेन यू आर कमिंग ऑन अर्थ यू आर गिवन अ जॉब, यू आर गिवन अ टास्क. So as I explained in the other number series of number 4, you can go back and watch that. I won't repeat it, otherwise this video is going to be really long. So you can go back and watch that one, that why this number is given to you. So similarly like them and similarly like other numbers also, as per their capacity, ये रोल नंबर आपको दिया गया है जिसका एक टास्क है. वो टास्क है कि इस दुनिया में आपको कुछ करना है, भला करना है दुनिया का. लेकिन अगर आप बहुत मटीरियलिस्टिक साइड से ऑपरेट कर रहे हो तो आप उसी में घुसे रह जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाते हो और अपनी कैपेसिटी से डबल लेवल पे आप एम कर लेते हो और उसकी वजह से खुद को बहुत थका देते हो. तो इसलिए आपको थोड़ा एम्बिशियस कम होना है, उसको नीचे लेके आना है और अपने कर्मा पे ज़्यादा ध्यान देना है. कम काम करो लेकिन अच्छा काम करो, क्योंकि जहाँ पर शॉर्टकट आपने ढूंढ लिया वहाँ पे आपने अपने लिए गड्ढा खोद लिया. ये मैं पॉइंट ब्लैंक पे बोल रही हूँ, ब्लंटली बोल रही हूँ सबको, क्योंकि बाकी कोई बच जाएगा लेकिन आप नहीं बच सकते. तो सॉरी अबाउट इट, बट देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सी दिस इज़ व्हाट इट इज़, सो लेट्स जस्ट गो अकॉर्डिंगली. द वाइब्रेशन कुछ कहती है हमारे नंबर की, तो हमें उसके अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा. Also, if you see that Saturn is the slowest planet in the solar system. So slowest means obviously आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इनको इतनी आदत पड़ जाती है ना कि इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आने वाला, बहुत धीरे धीरे होके आता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कर्मा अच्छा कर्मा करना बंद कर दो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नंबर इट्स गिव अप. क्योंकि वो इतनी मेहनत करेंगे और उनको लगेगा कि यार कुछ तो हो नहीं रहा, और अब वो शॉर्टकट ले लेंगे और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है. ये वही एक पीक पॉइंट आएगा आपके लाइफ टाइम में कि जहाँ आपको लगेगा कि गिव अप करना है, वो ही एक टाइम होता है जहाँ आपको गिव अप नहीं करना है. और आपकी लाइफ ओवरनाइट ऐसी चेंज होगी कि आपको लगेगा कि सब कुछ आपको दे दिया गया, चाहे वो किसी भी तरीके से होगा, कहीं मिरेकल जैसा लगेगा दुनिया को, लेकिन वो आपको ऐसे ही दिया जाएगा. बिकॉज वो जो वेट आपने किया ना इतने टाइम का, जो रोज़ आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, आपको सडनली इतना मिलेगा ना कि जैसे वो कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के देते हैं शनि, तो वो इन्हीं के लिए है, शनि के लिए ही है. एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि इनके अंदर सहन शक्ति बहुत होती है, विल पावर बहुत होता है, डिटर्मिनेशन बहुत होता है. और ये जो सहन शक्ति की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा अक्यूज़ किया जाता है इनकी लाइफ में. एक फैक्टर है जो नंबर 8 के साथ अटैच्ड होगा. ये पहली बात तो आप अगर नंबर 8 के साथ रहते हो या उनके साथ एसोसिएटेड हो, शायद आपको ये चीज़ें उनके बारे में नहीं पता होंगी, बिकॉज वो कभी बोलेंगे ही नहीं. ये वो बात अपने मन में भी अपने आप से डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हारना पसंद नहीं है. दे ऑलवेज वांट टू फाइट बैक, वांट टू राइज अगेन. उनको हार मान के बैठना पसंद ही नहीं है. तो ये बहुत इनर ट्रेट है उनका, जहाँ पर कि
इन्होंने इनकी लाइफ में एक ह्यूमिलिएशन का फैक्टर बहुत एडेड होता है, एक ऐसा ह्यूमिलिएशन और हेट्रेड फ्रॉम अदर पीपल। जिस तरीके से इनका तरीका होता है ना काम को ऑपरेट करने का, क्योंकि ये इमोशंस के साथ ऑपरेट नहीं करते। कुछ ट्रेट्स शनि के लेके आते हैं ना, जहाँ पर कर्मा है तो काम तो करना ही है। बाकी के बिलीफ सिस्टम्स हम यहाँ से ले लेते हैं फ्रॉम अर्थ, बट उनका जो बेसिक ट्रेट है वो है काम करना। तो काम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उस काम में ये इमोशंस नहीं डालेंगे। अब सामने वाला जहाँ पे थक रहा है या फिर इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इनको बिल्कुल वो बकवास पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि ये अपने दुश्मन बना लेंगे वहाँ पे, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे दुश्मन बन गए, इसको प्रॉब्लम होगी। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दे आर सो यूज्ड टू इट, दे डोंट केयर। सो कहते हैं ना वन मैन आर्मी, दे आर लाइक दैट। वो वन मैन, और ये मैं मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग नहीं कह रही हूँ। इफ़ अ वुमन इज इन दैट पावर, she is working outside, she is handling everything, even at home she will carry all these traits. This is a very masculine trait that I'm telling you, and no matter if you're a woman or a man, you will carry these traits. तो अगर आप इनके साथ रह रहे हो या इनके साथ इनके जान पहचान में, आपको पता है। इवन इफ़ यू फाइंड अ नंबर 8, अगर आप किसी को डिस्टेंस से जानते हो तो हो सकता है वो आपको कभी कभी बाई चांस कोई नंबर 8 बहुत शांत लगता है, तो आप उसकी शांति पे मत जाना, क्योंकि इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त पैसिव अग्रेशन होता है। वो उसी को पता होगा जो उनके साथ रहता है, क्योंकि उनकी लाइफ हमेशा इनसे डोमिनेट होती रहेगी। आप इनका डोमिनेंस हटा ही नहीं सकते। और ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। now I'm talking about the number 8s which are good at heart, not the ones who are on the extreme end of being bad to people, but these number 8s who are family people, they will be very dominating, no doubt about it, but they know how to take care of you. So there is no harm in following them, there is no harm in surrendering to them. You will always be benefited. आपको किसी चीज़ को चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। See, this is a way to live with somebody who is born with such a trait. ऐसा नहीं है कि वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं या आपको दबा के रखना चाहते हैं या वो आपको बी लिटिल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 8 is a number to rule, and this number 8 who's ruling knows how things are right, okay? On the other hand, अगेन दिस रियली वेरीज फ्रॉम वॉट प्लेन यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम। अगर आप बहुत ही बैलेंस प्लेन से ऑपरेट कर रहे हो, यू विल बी अ वेरी गुड नंबर 8 टेकिंग केयर ऑफ द पीपल अराउंड यू। इफ़ यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ वेरी लो लेवल, यू आर इक्वली डेंजरस टू योर फैमिली। आप सब कुछ डिज़ास्टर में कन्वर्ट करने की काबिलियत रखते हो, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका माइंडसेट किस लेवल पे। अभी आप कैसे गेज करोगे कुछ भी करने के टाइम पे, अगर आपको लग रहा है चीज़ें कंट्रोल में है और आपका माइंड शांत है, दैट मीन्स आपकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, दैट मीन्स यू आर ऑपरेटिंग राइट। बट अगर कुछ भी करने से डोमिनेंस तो आप दिखाओगे, चाहे आप बैलेंस्ड हो चाहे इम्बैलेंस्ड हो, डोमिनेंस तो आपके ब्लड में है। तो अगर उस डोमिनेंस से आपके घर में शांति है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर जजमेंट। सो लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो कम इन टू प्ले कि आपके आसपास के लोगों के क्या नंबर हैं, वो आपको इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। सो एटलीस्ट आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो ऑल ऑफ यू कैन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर सो दैट देयर इज पीस एंड हार्मनी इन रिलेशनशिप्स। कमिंग बैक टू वर्क लाइफ में नंबर 8 अगर बॉस है तो आपसे बहुत ही काम करवाने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आई रिमेंबर वन नेम, नरेंद्र मोदी, who's you know the entire world is working for him. That's how they make you work, and a very stubborn lot of independence they carry with them, and they don't care about the hatred they have. You can see the amount of hatred he carries. जितने supporters हैं उतने haters भी हैं, और बहुत highest level के haters हैं, but still he doesn't care, he's just doing his own job. So on the other hand, there is another politician person that I remember, that's Manmohan Singh. That's, अब आप बोलोगे कि दोनों की पर्सनैलिटीज मैच नहीं करती, दिस इज़ अ पैसिव अग्रेशन विच इवन मनमोहन सिंह कैरीज। अगर आप उनको देखो, उनका जो एक ऑरा है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप में निकाला है। वो प्रेशर हैंडल करने की ताकत किसी में नहीं होती है, लेकिन ही डिड इट, ही सेल्ड थ्रू इट। एंड आप अगर उनको देखोगे कोई और होता तो नहीं कर पाता, बट ही डिड इट। सो दैट इज़ द पावर ऑफ नंबर 8, and he being so calm and patient person with such a subtle personality, आपने नहीं देखा होगा कि उनकी पर्सनालिटी चेंज हुई है। नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसेस ही वाज अंडर, बट उनकी पर्सनालिटी चेंज नहीं हुई। तो अगर शांत है, इसका मतलब ये नहीं, आप वो काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन शांत का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी पर्सनालिटी चेंज कर पाओगे। आप उनकी पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकते। दैट इज़ द रीज़न पीपल रिस्पेक्ट हिम सो मच, एंड इवन इन दैट ऑरा ऑफ हिज विच ही कैरिड, ही डेफिनेटली हैड अ लॉट ऑफ हेटर्स हिमसेल्फ। तो हेट्रेड और हार्डवर्क ये आपके साथ आएगा ही आएगा।
नंबर 8 के बारे में शायद ये लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन नंबर 8 बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, वेरी वेरी काइंड हार्टेड। दे आर जस्ट लाइक कोकोनट्स। बाहर से बहुत टफ होते हैं क्योंकि वो दिखाना भी चाहते हैं कि मेरे साथ थोड़ा तमीज़ से बात करो, थोड़ा डिस्टेंस से बात करो। दे वॉन्ट दैट, दे आर जस्ट लाइक लायंस, यू नो, कि मेरे से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, यू शुड नो वेयर टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक। ये वो कैटेगरी नहीं है जिसके साथ आप लूज टॉक्स कर सकते हो। इनको एक बॉस बन के रहने की आदत होती है, और बॉस का मतलब ये नहीं कि अगर ये किसी बॉस के अंडर भी एक नंबर 8 काम कर रहा होगा ना, उसका भी एक अलग एटीट्यूड होगा, तो उससे भी बॉस ना सोच समझ के बात करेगा कि ये अगर बिगड़ गया ना तो ये किसी के बस की नहीं है संभालना। तो इसलिए नंबर 8 का एटीट्यूड हर जगह काम करता है। even if somebody is working as a very in a economically weaker zone, even those people, like somebody is a gatekeeper, so he will have a proper chair, he will make sure that his uniform is clean, he will make sure that somebody coming in, somebody coming out cannot insult him. So he will have his own boundaries. That's the power of number 8. Doesn't matter what position you are at, they would demand respect and they would demand to be followed. अगर उनको लग रहा है कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो तो वो आपको स्पेयर तो नहीं करने वाले। वॉट एवर लेवल दे कैन अफेक्ट यू। थोड़े से रिवेंजफुल होते हैं थोड़े से रिवेंजफुल होते हैं, और बड़ा इनर ट्रेट होता है ये। शायद सामने नहीं दिखेगा, लेकिन वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। बिकॉज जो काम वो करने के लिए कह रहे हैं, उस काम को पूरा प्लान करने के लिए इन्होंने अपनी जान लगाई है, इतना हार्डवर्क उन्होंने किया है, लेकिन सामने वाले को लगता है देखो कितना बॉसी हो रहा है। सी, हम अगर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो हमें समझ आता है कि कोई इंसान किस तरीके से काम कर रहा है। बहुत ईजी है किसी को ब्लेम करना और किसी से नफरत करना, लेकिन अगर हम उसकी पोजीशन को समझें तो हमें समझ में आएगा कि वो किस लेवल से ऑपरेट कर रहा है, एंड देन वी माइट हैव सम म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। और यूजुअली इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नंबर 8 को बहुत बैक स्टैबिंग का सामना करना पड़ता है, वेदर इट्स पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। एनर्जी लेवल की बात करूँ तो मेंटल और फिजिकल एनर्जी बहुत हाई होती है, स्पेशली मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी इनकी हाई होती है, लेकिन अगर क्रिएटिविटी है तो डिस्ट्रॉयर्स उससे भी बेटर होते हैं। अगर बर्बाद करने पे आ गए तो फिर बहुत ही अच्छा करेंगे। तो इसलिए इनसे कभी पंगे नहीं लेने चाहिए। और पंगे इसलिए नहीं लेने चाहिए क्योंकि आप थक जाओगे लड़ते लड़ते, ये नहीं थकेंगे। आप थक जाओगे बहस करते करते, ये नहीं थकेंगे, क्योंकि उनका वो ट्रेट है। ऐसा नहीं कि वो ये इन्जॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको किक डेफिनेटली मिलता है बिकॉज इट इज़ देयर ट्रेट। लेकिन आप थक जाओगे और आप लास्ट में यही सोचोगे कि अरे ये तो बहुत बॉसी हो रहे हैं या बहुत डोमिनेटिंग हो रहे हैं। तो अगर आप नंबर 8 की इस फ्रीक्वेंसी को समझ पाते हो कि फ्रॉम वेयर दे आर ऑपरेटिंग, वाई दे आर बिहेविंग इन सच अ वे, एंड treat them with respect, treat them with that boundary. If they don't want you to enter that boundary, don't enter, it's okay. Why do you want to be so close to everyone? So maintain that boundary, maintain that professionalism, maintain that self respect, maintain that mutual respect for each other, and then you see that things can be little better for you. डिसिप्लिन के मामले में यूजुअली पीपल से नंबर 9 आर वेरी डिसिप्लिन, बट नंबर 8 उनके भी बाप होते हैं। नंबर 8 से ज़्यादा डिसिप्लिन कोई नहीं हो सकता वंस दे डिसाइड। बहुत कम फ्रेंड्स होंगे, लेकिन जो फ्रेंड्स होंगे वो लाइफ टाइम वाले फ्रेंड्स होते हैं। यूजुअली पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लव इमोशंस नहीं दिखा पाते हैं, केयर नहीं दिखा पाते, बट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी फैमिली को लेके, बहुत केयरिंग होते हैं। टाइम उनको इसलिए ज़्यादा दे नहीं पाते हैं बिकॉज दीज गाइज आर ऑलवेज बिजी इन देयर वर्क। उनको कुछ ना कुछ करना होता है, जैसे मैंने कहा ना, दे वेरी एम्बिशियस। तो एम्बिशियस है ना, तो एम्बिशन ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, उनको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट तो ये ले नहीं सकते, ले भी लिया तो ये वापस बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे विद इन नो टाइम। और ये अगर आपको नहीं पता है, बाई चांस यू आर अ वेरी यंग नंबर 8 दैट हु इज़ नॉट फेस्ड सो मच इन देयर लाइफ, प्लीज़ डू नॉट एवर टेक अ शॉर्टकट इन योर लाइफ। you will bounce back to numbers, like back to square one होगा बहुत जल्द, and with a lot of karmic baggage and a lot of punishment as well. So please don't even try that. आपका एक ही रास्ता है, हार्डवर्क का रास्ता। अपने रूलिंग प्लानट के अलाइनमेंट से आप अलग मत जाओ। आप उसकी स्पीड को, उसके ट्रेड्स को समझो और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को समझो, एंड देन यू ऑपरेट फ्रॉम इट। अगर आपने जल्दबाजी की तो आप बहुत बुरी तरह गिरोगे, और अगर आपने अपने आप को अलाइंड रखा तो आप इतना आगे जाओगे कि आप यू विल बी द लीडर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। सो एज आई सेड, दे आर ऑलवेज वर्किंग, क्यों ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ एनालाइज करते रहते हैं, और इसकी वजह से इनको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फैमिली टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, फ्रेंड्स के साथ टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि इनके दिमाग में एक एम्बिशन है और वो उनको चाहिए तो चाहिए, और जिस जिद से ये उसको पकड़ते हैं, कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम हो, ये उसको अचीव करते ही करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल दे विल रीच दैट प्लेस। लेकिन वो जो सैक्रिफाइस इन्होंने किया है ना, उसकी वजह से इनको कोई बहुत अप्रिसिएशन नहीं मिलता। एक तो घर वाले भी बोलेंगे कि टाइम नहीं दिया, और ऑफिस में भी अगर इन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया, उस लेवल का अप्रिसिएशन आने में इनको बहुत टाइम लग जाता है। तो कभी ना कभी
इस वजह से फ्रस्ट्रेट होकर ये शॉर्टकट्स अपना लेते हैं। सपोज दे वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी पैसा नहीं मिला। पैसा इतना मैटर नहीं करता है वैसे, लेकिन जब इनको लगता है ना कि होश में आते हैं एक बार अपनी लाइफ में कि अरे इतना मेहनत की लेकिन पैसा उस हिसाब से नहीं कमाया, सडनली फिर एक शॉर्टकट पे जाएंगे। वो शॉर्टकट इनके लिए गड़बड़ कर देगा। तो इसलिए आपको शॉर्टकट ही नहीं लेना। वो जो पीक पे जब आप जाते हो ना, दैट इज़ अ टेस्टिंग टाइम फॉर यू। वहीं आपकी टेस्टिंग होगी, और अगर आपने वो क्रॉस कर लिया तो फिर आप देखना कि एवरीथिंग विल बी शावर्ड, ब्लेसिंग्स विल बी शावर्ड ऑन यू। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट पीक टाइम, जो आपकी लाइफ में हो सकता है मल्टीपल टाइम्स आए, बट प्लीज़ पास दैट टेस्ट। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं वो थोड़े सेल्फिश, थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं, गैम्बलिंग में घुस जाते हैं, जो एक्सट्रीमली ऑपोजिट ट्रेट्स हैं, जो कि बिल्कुल सूट नहीं करते। और फिर क्या होता है, जिस तरह से हार्ड वर्क करते करते आपको रिजल्ट बहुत लेट मिलता है ना, और सडन और बहुत अच्छा मिलता है, उसी तरह से जो नेगेटिव रास्ते पर जाते हैं ना, और जो ये शॉर्टकट्स अपना लेते हैं, थोड़ा वो करते हैं, उनका भी लगता है, उनको एक टाइम दिया जाएगा कि हाँ वो करते जाएंगे एंड दे बी लाइक अरे आई हैव गॉट एवरीथिंग, एंड सडनली एक ऐसा डाउनफॉल आएगा कि वो सब कुछ क्रैश हो जाएगा। तो वेरी वेरी केयरफुल। वो सक्सेसफुल हो ये कभी नहीं हो सकता। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। फैमिली के लोग जो नंबर 8 के साथ रहते हैं उनको ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न लगते हैं, इतना ज़्यादा डिटेलिंग में घुस जाते हैं कि सामने वाले को लगता है कि सांस लेना भी है तो इनसे पूछ के लेना पड़ेगा, अगर आप उसके साथ जेल नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये समझो, आप इस चीज़ को समझो, नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बोथ द साइड्स, कि अगर आपको लगे ना कि आपकी ईगो हर्ट हो रही है यहाँ पर, कि कोई और कंट्रोल ले रहा है घर का, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, सब कुछ तो यही कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से लो ना, कि एक ऐसा इंसान आपको ईश्वर ने दिया है जिसके साथ जो सब कुछ कर लेता है, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। फिर तो आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, क्योंकि वो नंबर 8 जो करेगा ना, वो घर को संभालने के लिए ही करेगा। दैट पर्सन इज़ वन पर्सन जो फैमिली को एक साथ रखने की ताकत रखता है। तो अगर वो खुश है ना, तो वो सारी फैमिली को साथ रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो इरिटेट हो गया या गुस्सा हो गया, तो स्टबर्ननेस तो देखो नहीं जाने वाली, चाहे वो किसी भी प्लेन से ऑपरेट करे, एज आई ऑलरेडी सेड, तो आप बहुत सफ़र करने वाले हो। तो कोशिश करना कि नंबर 8 के साथ ना मैनिपुलेशन नहीं चलता। जैसे कि शनि है, शनि तो किसी को छोड़ते नहीं है, उसी तरह से नंबर 8 को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर दी गई है। और ये इंट्यूटिव पावर दी गई है आप लोगों को समझने की। लोगों की बहुत अच्छी समझ होती है, और ऐसी समझ होती है कि अगर इनको लगता है ना कि ये आदमी ठीक नहीं है, तो ये पहले ही डिस्टेंस रख लेंगे उससे। और अगर वो भिड़ गया इनके साथ, तो ये उसको छोड़ेंगे ही नहीं। अगर वो कहते हैं ना, वो दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए, अगर वो इनको हार्म करके गया तो वो बचने वाला नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये अगर कह रहे हैं ना कि इससे दूर रहो, या ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो आप उसको बिलीव कर लो, बिकॉज इनको एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों की बहुत ज़बरदस्त। और ये आपके ऊपर दिल कीप एन आई ऑन यू इफ़ यू आर अंडर द रडार। इनका परसेप्शन भी बहुत जल्दी चेंज नहीं होता उस हिसाब से। अगर एक बार समझ गया कि ये गलत है तो मतलब गलत ही है, फिर तो वो चेंज हो ही नहीं सकता। एक ही तरीका होता है नंबर 8 के साथ बात करने का, प्यार से बात करने का। गुस्से से तो आप चाहे छोटे बच्चे से बात करो, चाहे किसी बहुत ही वीक बहुत ओल्ड एज किसी इंसान से बात करो, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। बीच की कैटेगरी तो मैं काउंट ही नहीं कर रही, बिकॉज वो तो फिर आपको तुरंत ही बता देगी अगर आपने बहुत गुस्से से इनसे बात करी तो। एक ही तरीका है इनसे बात करने का, प्यार से। मेक सेंस ऑफ वॉट यू आर सेइंग, एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू इफ़ यू अप्रिशिएट देम, यू डेफिनेटली कन्वे दिस टू देम। क्योंकि अगर आप बिना मतलब इनको अप्रिशिएट कर रहे हो और आप अंदर से कुछ और एनर्जी रख रहे हो, इनको समझ आ जाएगा, एंड दे विल मेक डिस्टेंस। इसी प्यार से बात करने की जो मैंने चीज़ बोली, ये ही इनका एक वीक पॉइंट भी होता है। अब ये नंबर 8 के लिए है डायरेक्टली, कि अगर आपसे कोई बहुत ही प्यार से बात कर रहा है और वो आपसे मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल से कहीं ज़्यादा ही ऊपर है, अब मैं वो नंबर्स के नाम नहीं लूँगी, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। अगर वो मैनिपुलेट करके आपसे कोई ऐसी बात कर जाता है, तो आपको भड़काना बहुत आसान है। तो इनको ऐसा लगता है कि जो इंसान मुझसे प्यार करता है, वो जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही है, चाहे उस इंसान की खुद की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी ना हो किसी को लेके। लेकिन ये थोड़ा सा कान के कच्चे हो जाते हैं वहाँ पर आकर, ये एनालाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो अगर उस दोस्त ने या उस फैमिली ने कुछ बोल दिया, तो ये बहुत जल्दी भड़कते हैं, फिर ये नहीं सोचते क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पर मैं नंबर 8 को बोलूँगी कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे बेटर किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप अपने डिसीजंस किसी के कहने पे मत लो, अपने हिसाब से लो। यू विल बी बेटर जज एंड यू विल बी गेज्ड बेटर। द अमाउंट ऑफ हेट्रेड दैट यू आर कैरिंग ना, जो बाकी लोग आपके लिए कैरी कर रहे हैं ना, वो आप उसके हकदार हो नहीं। इट इज़ अ लॉट ऑफ इल्यूजन दैट इज़ क्रिएटेड ऑन योर बिहाफ, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हो जो जाके एक्सप्लेनेशन देते हो किसी भी बात का। जिसको जो सोचना है सोचो, गेट लॉस्ट, ये वाला एटीट्यूड होता है।
विच इज़ ओके, इफ़ यू आर ओके विद इट दैट्स फाइन, बट देन इतना जो आप हेटरेड लोग आपके लिए कैरी करेंगे ना, जो शायद आप डिज़र्व भी नहीं करते हो, उसका कर्मा बैगेज आप लेते हो, तो आपकी लाइफ और डिफ़िकल्ट होती है। तो आई एम नॉट सेइंग गो एंड एक्सप्लेन थिंग्स टू पीपल, आई एम ओनली रिक्वेस्टिंग कि जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, डिसीजन अपने दिमाग से लेना, किसी और के दिमाग से नहीं। कोई भी छोटा मोटा काम तो इनको बिल्कुल सूट नहीं करता है, हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी चीज़ें करने का शौक है। सो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ छोटा कर रहे हो, आपको लगता है कि ये बहुत छोटी मोटा काम है, तो आपको छोड़ देना चाहिए, आपको कुछ बड़ा ही करना चाहिए। यू आर मेंट फॉर दैट। इतना स्ट्रगल किसी छोटी चीज़ के लिए नहीं होता। यू आर मेड फॉर समथिंग रियली बिग। लक के बेसिस पे प्लीज़ मत जाना, वो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। जहाँ पे हार्ड वर्क दिखता है, कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, यहाँ पर लोगों की सेवा का मौका मिलता है। सी, दिस इज़ फॉर एवरी वन, नॉट जस्ट यू, दैट आपकी लाइफ का आई वुड से 70% ऑफ योर लाइफ, योर कर्मा गोज इन वॉट जॉब यू आर डूइंग, बिकॉज आप वहाँ बहुत टाइम अपना स्पेंड करते हो। तो उस काम का जो एंड प्रोडक्ट है, क्या वो सही कर्मा में जा रहा है, प्लीज़ इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। अगर वो जा रहा है तो वो ऐड ऑन होता है आपके कर्मा अकाउंट में, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर ये नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज़ मेक श्योर, चेक व्हाट यू आर डूइंग। पैसे के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, कहाँ खर्च करना है, कितना करना है, कैसे करना है, दे आर वेरी गुड एट इट। सो मनी रिलेटेड जॉब्स आप बहुत अच्छी, मनी की स्पेकुलेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैम्बलिंग में चले जाओ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट लेके, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर शेयर मार्केट्स एंड ऑल अंटिल यू हैव सम पार्टनर हु इज सजेस्टिंग यू टू गो फॉर इट। बट डायरेक्टली आप कभी खुद अपने दिमाग से उसमें मत डालना, क्योंकि वो लक का फैक्टर आएगा जो आपको नहीं सूट करेगा। हो सकता है कुछ टाइम तक बहुत करे, लेकिन एक सडनली किसी और एरिया में ऐसा लॉस आ जाएगा कि आप रिलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन नाउ दैट आई एम टेलिंग यू, बी अवेयर ऑफ इट, दैट वो लॉस लेके ही जाएगा। कोई भी चीज़ जो शॉर्टकट से आपने ली है, वो रहेगी नहीं आपके पास, वो जाएगी ही जाएगी, और जब वो जाएगी तो वो उससे ज़्यादा लेके जाएगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड जो नंबर 8 का होता है ना, अब ये बहुत मुश्किल है जो लोग मानेंगे, लेकिन ये सच है, 90% ऑफ नंबर 8 आर डिप्रेस्ड। ये बात शायद वो खुद भी नहीं जानते होंगे, लेकिन ये सच है। और ये क्यों है, मैं एनर्जी रीडिंग के हिसाब से बता रही हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट्स हैं या वो किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो इसलिए डिप्रेस्ड है क्योंकि उनको लाइफ जीने का एक तरीका जो है वो चेंज हो चुका है, बिकॉज ऑफ ऑल दी स्ट्रगल्स दैट दे हैव गॉन थ्रू। वो एक अलग ही जोन में जीते हैं जहाँ पर कि उनको लगता है आसानी वाला तरीका तो मेरे लिए है ही नहीं, तो वो एक पॉजिटिव साइड छोड़ देते हैं उस चीज़ की। और इतना हार्डवर्क करके जो एक इंसान थक जाता है ना, तो वो डिप्रेशन में जाता ही जाता है। तो ये बड़ा ही सप्रेस्ड डिप्रेशन होता है इनका, जिसके बारे में ये कभी ना खुद से बात करेंगे, दूसरों से बात करने का तो सवाल ही नहीं है। खैर, ना खुद से बात करेंगे ना किसी और से बात करेंगे, लेकिन एक सडन एक इनके अंदर एक बहुत डीप हैवीनेस होती है जिसको ये लेके चलते हैं। और ये चूज़ करेंगे उसके बारे में बात नहीं करना, चूज़ करेंगे उसके बारे में ना सोचना। लेकिन नंबर 8 मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपका जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है वो यहीं से टैप होगा। जब आपका इतना हार्डवर्क आप बाहर कर रहे हो, ये हार्डवर्क अगर आप अंदर करोगे ना, तो आप उस इनफाइनाइट पोटेंशियल को क्रैक कर पाओगे, एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट लेंथ्स यू कैन गो टू। Here comes the strength of your mind. Now you already have a very strong mind, but I am talking about the mind which is beyond this conscious mind, that is your subconscious mind. So here comes the role of meditation, again the mental gym. As I've been suggesting to everyone, mental gyms are the tool is meditation and yoga. And meditation is one thing that is going to take you deeper to this depression that you've been carrying because of the struggle that you've had in your life, the pain and the grief and all that sacrifices that you've made throughout your life. This is going to take you deeper into that, crack it, heal it, and then bring you back in your power. और वो जो पावर होगी ना, उसको कोई मैच नहीं कर पाएगा. You will rise like a sun and you will glow like a sun. So if you have that in you, you want to crack that, you definitely must. एक और सजेशन जो नंबर 8 के लिए आ रहा है वो है कि आप प्लीज़ अपने ओल्ड एज के लिए थोड़ा पैसा सेव करके रखना, एक बैकअप प्लान रखना कि मनी की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड योर सेल्फ एस्टीम, you will not ask for help from anyone. So in old age it will be difficult for you to do so much of hard work. तो अभी आप कर रहे हो वो हार्ड वर्क, तो प्लीज़ अपना पैसा सेव करके रखना. अर्ली मैरिज turns out to be disaster for number 8. I'm sorry to say this, but ये usually होता है because number 8 की इतनी struggles होती है, उसमें एक और शादी आ जाती है which comes with a lot of emotional responsibility, जिसको ये बहुत ज़्यादा नहीं निभा पाते. On the contrary, when they come into the late 30s, right, as I said, the second half of their life, that is after 35 if they go for it, वहाँ पे जाके थोड़े balance हो जाते हैं. So
you should try to take your time. Everyone should try to take their time to get married and get into emotional relationships. थोड़ा time लो, थोड़ा patience के साथ, and then you can enter into it. It will be better for you. Now, all those who are already married, younger than this age, please hold your horses till you cross 35 so that you are more balanced. Okay. नंबर इसके एक और सजेशन जो है यहाँ पर वो है कि आप प्लीज़ ये जो मैं नहीं झुकूंगा वाला जो एटीट्यूड है इसको थोड़ा सा काम डाउन करो. यू नीड नॉट बी दैट अग्रेसिव. यू ऑलरेडी डिसिपेट अ लॉट ऑफ अग्रेसिव एनर्जी विद योर ऑरा. सो ज़्यादा और इसको एग्रीवेट करने की ज़रूरत नहीं है. आपके ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनिमीज़ होते हैं, तो वैसे वो आपको फ़र्क नहीं डाल पाएंगे इतना, बिकॉज आपसे कोई लड़ नहीं सकता. लड़ सकते हैं बट जीत नहीं सकते. सो दैट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू मच. बट आपके लिए जो आपको हार्म कर सकता है वो आप खुद हो. जब आप खुद ही उस एनर्जी में पहुंच जाते हो जहाँ पे एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रीक में पहुंच जाते हो, वहाँ पर आप ओवर वर्किंग की वजह से, हेल्थ पे ध्यान ना देने की वजह से, रिवेंजफुल होने की वजह से खुद को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हो. तो कोई और आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो. इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट. और जितने भी बाकी के लोग इसको सुन रहे हैं जो नंबर 8 के बॉसेस के साथ या नंबर 8 के फैमिली मेम्बर्स के साथ डील कर रहे हैं, आपको भी मैं ये प्लीज़ बोलूँगी कि आप किसी नंबर को बिना जाने उसके साथ कोई भी एक्सट्रीम बिहेवियर ना रखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वही वो लोग हैं जो क्राइसिस के टाइम पे आपको बचा सकते हैं. यही वो लोग हैं जो कहते हैं ना, रायता फैला हुआ है उसको समेटना सिर्फ नंबर 8 को आता है. तो ये पावर किसी के पास नहीं है, और अगर ये पावर किसी के पास है तो वो सटल एंड नॉर्मल एंड बहुत ज़्यादा स्वीट तो नहीं हो सकता. दे नीड टू हैव दैट अथॉरिटी टू कीप द टीम इन देयर कंट्रोल. तो विच इज़ ऑल राइट. ओके. कुछ लोगों का ये हेट्रेड इतना एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है कि लोग वेट करते हैं इनके फॉल का. आई एम वेरी सॉरी टू से आई एम ब्रिंगिंग अप वेरी ब्रूटल फैक्ट्स ओवर हियर, बट ये सच है कि लोग इनके फॉल का वेट करते हैं. नंबर 8 गिरता भी बहुत बार है. ये तो डेस्टाइंड है कि दे विल फॉल मेनी टाइम्स, लॉट ऑफ टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम. लेकिन उनको राइज करना भी आता है बहुत अच्छे से, और उनको गिरने का डर भी नहीं होता. वो इट्स लाइक ब्रिंग इट ऑन एंड आई डोंट केयर. और बाकी लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं इनको फ़र्क नहीं पड़ता. एज आई सेड, माई वे और हाईवे. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. एक और बहुत स्पेशल ट्रेट जो मुझे नंबर 8 का बताना है वो है कि एज आई सेड कि इट्स ओके टू सरेंडर टू देम. इट्स ओके व्हेन दे आर डोमिनेटिंग, इफ़ यू कैन यू नो बेयर दैट. लेकिन अब ये नंबर 8 के लिए ये आ रहा है कि नंबर 8 की ना आदत होती है, उनको लगता है कि उनका सेंस ऑफ जस्टिस बहुत अच्छा है, जो कि होता भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन अगर आप उस बैलेंस्ड प्लेन से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड. you are meant to have that sense of justice, correct, but वो किस प्लेन से आप ऑपरेट कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है. अगर आप लो प्लेन से ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हो खुद को लेके, तो आप सोचो आपकी थिंकिंग होगी कि मैं बहुत अच्छे से जस्टिस दे रहा हूँ, लेकिन आप एक्चुअली बहुत इनजस्टिस कर रहे हो अपने लोगों के साथ. इस चीज़ का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है क्योंकि आप उनसे लड़ नहीं सकते, आपसे कोई बहस नहीं कर सकता, आपके आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन आप कितना इनजस्टिस कर रहे हो सामने वाले के साथ. तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि एम आई इन दैट सेल्फ अवेयरनेस, आई नो वट आई एम डूइंग, एम आई ट्रबलिंग पीपल अराउंड मी, एम आई रियली हर्टिंग देम. अगर ये सेंस आप में कहीं भी आ रहा है तो प्लीज़ अपने लेवल को, अपने प्लेन को शिफ्ट करना और अपने सेल्फ अवेयरनेस पे आना. सेंस ऑफ जस्टिस आप ही का अच्छा होगा, लेकिन अगर आप खुद ही उस लेवल पे नहीं हो तो फिर आप कैसे दूसरों के साथ अच्छा कर सकते हो, और ये दूसरे लोग आपसे कुछ बोल भी नहीं पाएंगे. सो प्लीज़ राइज अबव इन दैट लेवल ऑफ प्लेन एंड प्लीज़ ऑपरेट फ्रॉम अ हायर लेवल. देन यू विल बिकम अ लाइट फॉर एवरीवन. नंबर 8 का ब्यूटीफुल विजन होता है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन लोग होते हैं. वल्नरेबिलिटी आती है इमोशंस में, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. डिमांडिंग है, डोमिनेटिंग है, फियरलेस है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुश्किल होगी थोड़ा एक्सेप्ट करने में, नंबर 8 वाले लोग हमेशा ऐसी चीज़ें खरीदेंगे या ऐसी चीज़ें पहनेंगे अपने उनके आसपास के एनवायरनमेंट में, हमेशा बहुत डोमिनेटिंग चीज़ें रहेंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कपड़े भी पहनते हैं, अगर बहुत कम कपड़े भी हैं उनके पास, तो भी उनके कपड़े इस तरीके के होंगे जो एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी दिखाएंगे, लाइक अ बॉस. दे वुड नॉट ड्रेस अप लाइक एनीवन, दे विल ड्रेस अप लाइक यू नो अ बॉस. सो उनका ऑरा हमेशा एक बॉसी, वो चाहते हैं कि ये रहे सामने, यही पर्सनालिटी मेरी जाए. कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं मेरे को ये चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि लोग अब मुझे अप्रोचेबल समझे. नो, दे डोंट वांट यू टू बिलीव दैट दे आर अप्रोच. तो जहाँ पे भी होंगे, जिस लेवल पे भी होंगे, जितना भी कमाते होंगे, जो भी उनका सोशल स्टेटस होगा, उससे 2 कदम ऊपर ही दिखेंगे वो. ऐसे में अब ये होता है कि they are attracted to black because they feel that black color is something that shows dominance.
लेकिन ये एक छोटा सा सजेशन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आपको लगेगा कि जब हम किसी भी गुरु की बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था अपने गुरु से मिलते जुलते आपको कपड़े पहनने हैं। तो यहाँ पर अक्सर लोग, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, कि यहाँ पर अक्सर लोगों को लगता है कि अगर आई एम ऑपरेटेड बाय शनि तो मुझे ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन आप उसका मेटाफर नहीं समझते हो। शनि का काला होने का एक मेटाफर है, वो ये है कि आपके अंदर जितनी भी ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक मीन्स डार्क एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, ये जितनी भी डार्क एनर्जीज हैं आप इनको लेट गो करो। ये वो जब दर्शाते हैं तो ही आपका कर्मा ठीक होगा। इस वजह से उन्होंने वो काला रंग धारण किया है। और वो आप प्लीज़ किसी भी मूर्ति को देखकर या किसी भी मूर्ति के कलर को देखकर आप उसको लिटरली मत लो। हर चीज़ का एक मीनिंग होता है। भगवान ऐसे नहीं दिखते, भगवान एक एनर्जी है। तो उस एनर्जी ने ये रूप क्यों रखा है, हमें ऐसा क्यों दिखाया गया है, मंदिरों में इस तरीके से क्यों रखा गया है, बिकॉज हमें उससे कुछ सीखना है। और वो ये सीखना है कि ये जो डार्क एनर्जीज हैं, आपको काला रंग का क्या मतलब है कि आपको वो नेगेटिविटीज़ को लेट गो करना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको काला कलर लेना है या काले रंग की गाड़ियाँ लेनी है या काला कलर का यूज़ बढ़ाना है, ऐसा नहीं होता। आई नो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट इट, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप जितना इस कलर को अपने अंदर लोगे आप उतनी ही ज़्यादा एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हो। कलर्स के बैंडविड्थ को अगर आप देखोगे तो एज यू गो टुवर्ड्स ब्लैक एंड वाइट आर नॉट कलर्स, सो every color absorbed together becomes black and all the colors if removed is left with white। तो ये होती है डेफिनेशन ब्लैक और वाइट की। तो आप जैसे जैसे यू विल मूव टुवर्ड्स द रेंज ऑफ ब्लैक, आपकी जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। एज इट इज़ आप बहुत ज़्यादा कर्मा बैगेज लेके चल रहे हो, एज इट इज़ यूर अंडर द सर्विलेंस, ऊपर से आपने और एनर्जीज़ को वेलकम कर लिया, तो फिर आपका जो अग्रेसिव पार्ट है वो बढ़ जाएगा, आपकी एक डोमिनेंस बढ़ती चली जाएगी। जो भी मैं आपकी एनर्जीज़, जहाँ पर मैं आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, वो बढ़ती चली जाएंगी। सो ये आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो हो सके तो प्लीज़ लाइट कलर्स का यूज़ करो। अगर आप लोअर प्लेन से ऑपरेट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली रिवेंजफुल एनर्जी रखोगे, और अगर आप हायर प्लेन से ऑपरेट कर रहे हो तो आप एम्बिशियस रहोगे इन अ गुड वे टू हेल्प पीपल। सो अब आप खुद सोच सकते हो वेयर आर यू ऑपरेटिंग फ्रॉम, आप कहाँ अटके पड़े हो। अगर आपको लगता है कि आई एम स्टक समवेयर, प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस, वेयर एम आई स्टक। ये कौन से लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको लगता है कि दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो आपको अपने लिए चेक करना है कि आप कौन से ऐसे लोगों से इरिटेट हो जाते हो, कौन से ऐसे लोगों से ट्रिगर हो जाते हो। वो ट्रेड्स आपके अंदर आपको खुद का ही एक रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं कि विच प्लेन यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू आर अ बैलेंस्ड नंबर 8, आप अपने काम में खुद देखोगे कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आप लोगों की मदद कर रहे हो। डोमिनेंस दोनों में रहने वाला है। वो डोमिनेंस रिवेंजफुल होगा लोअर प्लेन वाला, और ये डोमिनेंस होगा टू हेल्प अदर्स, लोगों की मदद करना। लोग फिर भी आपसे नफरत करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आपको जज करे डजंट मैटर, लेकिन आपको पता है कि मैं काम ठीक कर रहा हूँ, और उसका जो रिजल्ट है वो है मेंटल पीस। जो आपको मिलेगा वो शांति आपकी लाइफ में आएगी, और आपको समझ में आएगा कि आई एम ऑन द राइट पाथ। सो नाउ फ्रॉम हियर यू कैन जज। किसी भी कोई भी कुंडली एनालिसिस, कोई भी पंडित वंडित किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हम सारे लोगों के अंदर ये पावर है कि हम समझ सकते हैं कि कर्मा क्या है। हम अपना अगर कर्मा देखें, किसी भी चीज़ से अगर हमें अग्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, प्लीज़ लुक विद इन योर सेल्फ कि व्हाट एम आई डूइंग। आपको वहीं अपने आंसर्स मिल जाएंगे, और जब आप उसको ठीक करोगे आप अपने बाहर का एनवायरनमेंट भी चेंज करने की पावर रखते हो। सो दैट्स द पावर ऑफ कर्मा। अंडरस्टैंड इट एंड विल सेल थ्रू। इट्स गेटिंग वेरी लॉन्ग, सो मैं अब इसको रैप अप करती हूँ। नंबर 8 के लिए जॉब से रिलेटेड अगर मैं बात करती हूँ तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो जहाँ पर स्टेबल मनी आता रहे। एनर्जी बहुत यूज़ हो सकती है, क्रिएटिव हो सकते हैं तो क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, एनर्जी वाले स्पोर्ट्स में आप जा सकते हो। कर्मा ऑपरेटिंग प्लैनेट है तो आप अर्थ रिलेटेड काम बहुत अच्छे कर सकते हो। ग्राउंडिंग होती है ना, हीलिंग होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ को सक करने की पावर होती है अर्थ में। तो अर्थ से रिलेटेड कोई भी जॉब्स अगर हो, फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, या आपके कंस्ट्रक्शंस के काम होते हैं, या मेटल्स जो अर्थ से निकलते हैं, केमिकल्स जो अर्थ से निकलते हैं, ऐसे कोई भी चीज़ के बिजनेस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। पार्टनरशिप आई वुड नॉट सजेस्ट यू, एज देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ बैक स्टैबिंग। कोर्ट केसेस में अगर कभी आप फंसते हो तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज़ ऑलवेज गुड फॉर यू। कोर्ट केस में फंसने के बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, सो प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड दैट।
नंबर 8 के बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इनको स्पोर्ट्स में डालो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी इनकी डेली होनी चाहिए फिजिकल लेवल पे। मोटर स्किल्स इनके हमेशा एक्टिव रहने चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई में और इस सब में मत घुसाना। देयर ऑल्सो दे विल डू वेरी गुड, दे विल बी वेरी गुड इन मैथ्स एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन फिजिकल होना इनके लिए इन स्पोर्ट्स और समथिंग एक्टिविटी में बहुत ज़रूरी है। जो इनकी हेल्थ को ठीक रखेगा, जो इनकी फिटनेस को ठीक रखेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर इट इज़ बैलेंस्ड। दिमाग बहुत तेज़ होता है तो ये साइंस के फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, मैथमेटिशियन बहुत अच्छे बन सकते हैं। कमिंग डाउन टू हेल्थ, नंबर 8 वालों को अक्सर लेग्स में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक मैंने कहा, एक तो बोन्स जॉइंट्स का इशू हो सकता है, लेग्स में डेफिनेटली इनकी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जो पैर है ना वो आपके कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। एज यू वॉक ऑन अर्थ, वॉक थ्रू अर्थ, तो ये पूरा बोझ जिसको आप कहते हैं ना लेके चलते हो, दैट इज़ ऑन योर लेग्स, तो ये आपके लेग्स में कुछ ना कुछ इशू ज़रूर आता है। डिप्रेशन का इशू इनको हो सकता है, जब जो कि कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन आप जानते हो व्हाट आर यू स्ट्रगलिंग विद, तो आप उसको समझोगे कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको लगेगा ही नहीं कि बहुत बड़ी बात है। उसी डिप्रेशन को दूसरा कोई समझ रहा है तो वो ऑलरेडी कंसल्टेशन ले रहा होगा किसी साइकेट्रिस्ट से, लेकिन आपको ये बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी। फिर भी मैं आपको बोलूँगी, एज आई सेड, यू हैव टू टैप ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, तो इसलिए उसको अपने लेवल पे हैंडल कर लो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है तो, लेकिन प्लीज़ डू हैंडल इट टू एक्सप्लोर योर इनफाइनाइट पोटेंशियल। बोन्स और टीथ थोड़े इनके डेलिकेट होते हैं। और एक सजेशन आपके लिए ये है, आपको ज़रूर लगता है बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील होता है कि आपको नए लोग, नए दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बनाओगे आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आपके नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत होगी, आपको बनाने चाहिए। डरो मत इस बात से कि कोई आपका फ़ायदा उठाएगा, बैक स्टैबिंग करेगा, कुछ ऐसा करेगा। अंदर का एक इनर फियर होता है, बट कोई ज़रूरत नहीं है उसको डरने की, आप सब कुछ फेस कर सकते हो। नेटवर्किंग आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगी। प्लीज़ पास्ट में जीना छोड़ दो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट के बारे में सोचो और प्रेजेंट को पूरा कम्प्लीटली यूज़ करने की कोशिश करो। कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है आपको, और ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपके लिए कि आपको कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है लव लाइफ में। इफ़ यू हैव अ पार्टनर whom you have found that she is the love of my life, प्लीज़ उसको जाने मत देना, बिकॉज लव के मामले में बहुत ज़्यादा आप लकी नहीं होते हो। तो अगर आपको आपका पार्टनर मिल गया है तो प्लीज़ सेटल विद इट, डू नॉट कीप ऑन रिजेक्टिंग इट बिकॉज ऑफ योर ईगो रिलेशनशिप्स में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एंड लास्ट, दैट यू प्लीज़ डू नॉट टेक एनी डिसीजन इन एंगर। आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा एक पैसिव अग्रेशन में आप जीते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन भी दिखा रहे हो बाहर, तो एक अंदर पैसिव अग्रेशन होता है। तो प्लीज़ एंगर में, कोई भी गुस्सा में डिसीजन नहीं लेना है। कुछ छोटी टिप्स मैं आपको बता सकती हूँ। ब्लैक का यूज़ कम करना है। पॉलिश्ड शूज़ अगर आप पहनोगे, ये शनि को बहुत इंप्रूव करता है आपके, तो आपको लक फैक्टर ये लेके आएगा। अपने घर में स्पेशली एंट्रेंस पे डार्कनेस मत लाना। ब्लैक कलर से आपको दूर हटना है, तो डार्कनेस नहीं होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, लाइट जला के रखना। दिस इज़ फॉर एवरीवन बाय द वे। number of your phone number and your account number should bring it down to number 6, which is a lucky number 6। थोड़ा 8 का वो होता है ना, लक थोड़ा ख़राब होता है, लक फैक्टर थोड़ा वीक होता है, तो आप उसको या तो कर्मा को इस लेवल पे लेके आओ कि आपका कर्मा ही आपके लिए लक बन जाए। और फिर भी अगर जैसे अनइंटेंशनली गड़बड़ हो जाती है तो आप नंबर 8 की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके नंबर 6 पे ला सकते हो, विच इज़ योर अकाउंट नंबर और योर फ़ोन नंबर इक्वलिंग फ्रॉम 24, if 24 that's the best, so that will be number 6। The colors that you should avoid is black and also red, I would say। थोड़ा red को avoid करना, ये बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज को आपके अट्रैक्ट कर सकता है। रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए पिंक कलर इज गुड फॉर यू, एंड फॉर योर करियर वेयर ब्लू, दैट्स रियली गोना हेल्प यू अ लॉट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कभी सॉरी बोलना पड़ जाए तो प्लीज़ बोल देना। आप नंबर 8 को कभी सॉरी बोलते हुए नहीं सुनोगे, तो इट्स ओके नंबर 8, इफ़ यू कैन जस्ट बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल, ट्राई। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट इफ़ यू कैन ट्राई, you can actually get back a lot of opportunities and a lot of relationships। Roll number of number 8 is given to you for a purpose। Try and understand that purpose, just don't waste it। ये struggle सिर्फ इस अर्थ पे मटीरियलिस्टिक प्लेजर लेने के लिए नहीं है, ये बहुत कुछ देने आया है आपको, क्योंकि आपको इस दुनिया को बहुत कुछ दे के जाना है। तो प्लीज़ डोंट गेट फूल्ड बाय थिंकिंग दैट आई एम अनलकी और लाइफ इज़ दिस हार्ड एंड दैट। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, think that there is something else bigger waiting for you। Tap on your subconscious mind and reach that infinite potential। That's all for number 8। I hope you enjoyed watching this video as much as I enjoyed making this. If you liked it, please like, share and subscribe with your friends and families. The information should reach the maximum people. In whatever way we can help, we should. I would like to conclude this video with a very important message, that understanding yourself and others begin with a healthy and happy mind. So because of unfortunately the lifestyle these days which we live is very stressful, and a lot of anxiety and
weird lifestyle that we are in these days is leading to a lot of mental health issues. So I would request you all to be a little mindful about yourself and others around you, and take the action. Just don't think about it. Take the action to reach out any professional. You can also reach out to me. I am a professional working in mental health industry for quite some time now, and you can reach out to me on Instagram. My handle is Vivolve1111. There is no phone number or any contact number given anywhere else. So feel free to reach out to me on Instagram, drop me a message, and I'll get back to you, and we'll take it further from there one on one. So that's all for today. I wish you all a very healthy mind and happy life. Please take care of yourself. Thank you. Om Namah Shivaya.